مہمان خصوصی کمڈور ساجد حسین، چیف آف دا نیول سٹاف، پاک بحریہ کے افسران اور سویلین کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے، جس کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے، جس کے بعد یہ آج کی تقریب اپنے اختتام پہ پہنچے گی۔ اچھا، کمال یہ ہے آج کی یہاں پہ ہم موجود ہیں اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے، ایک طرف شاہی مسجد ہے جو ہماری تاریخ میں اذان سحر کی گلفشانیوں کا ایک دلنشیں اظہار ہے، دوسری طرف یہاں پہ ہمیں شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے جو ہماری عظمت و سطوت کی بہار سامانیوں کا ایک دلاویز مرقع ہے، تیسری طرف رنجیت سنگھ کی سمادھی ہے جو تاریخ کی المناک کیفیتوں کی دلگداز روداد ہے، اور چوتھی طرف خود مزار اقبال ہے جو فکر و نظر کی رفتوں کا ایک دلرباز نشان ہے۔ شاہی مسجد کو مظہر اخوت قرار دینے والے حضرت اقبال نے گداز دل سے قبولیت کے کسی لمحے میں دعا کی تھی، مرکدی رسایہ دیوار بخش، یعنی مجھے دیوار کے زیر سایہ آسودہ خاک ہونا نصیب فرما، جو اسی شاہی مسجد یعنی عالمگیری مسجد کے حق میں قبول ہوئی۔ اقبال کو تہ خاک ہوئے مدتیں ہو گئی ہیں، لیکن ان کا آفاقی پیغام آج بھی ہمارے لیے ہدایت، رہنمائی اور خود شناسی کا سرچشمہ ہے۔ منوہر لال ہادی نے اقبال کی رحلت پر اپنے مرثیہ کلام میں اسی حقیقت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کیا ہے صورت ظاہر کا چھپ جانا کہیں، اس سے ہو جاتی ہے لیکن جوہر شاعر مبین، موت پا کر جاودانی ہو گئی ہستی تیری، موت سے پیغام تیرا کر دیا سرمدی۔ اس وقت پاک رینجرز کے جو دستے ہیں وہ اپنی پوزیشن سے واپس اپنی پلاٹونز میں اپنی صفوں میں شامل ہو جائیں گے، اور آج کی گارڈ کی ذمہ داریاں پاک بحریہ کے حوالے ہو چکی ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے، اور خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، اور خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمین اس کی سید آسماں اس کا سید، اور خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں دیتے شعلہ شرر کے عوض۔ ایسا بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جو اپنی حیات اور بعد از وفات شہرت و ناموری کی معراج پر جا پہنچی ہوں۔ انہی میں سے ایک نابغہ روزگار شخصیت حضرت اقبال کی ہے، جن کی شہرت کا آفتاب ہمیشہ ہمہ وقت اوج ثریا پر مقیم رہا۔ اصل بات سر یہی ہے کہ خودی دراصل انسان کی ذات میں پوشیدہ ایک محرک قوت ہے جو بذات خود متحرک نہیں، لیکن اس سے جو تحرک عمل میں آتا ہے اس سے ہم خودی کو پہچان سکتے ہیں۔ اقبال عمل پہن اور جود مسلسل کا پیغام دیتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک حرکت و عمل زندگی کی علامت ہے، جبکہ تساہل اور جمود و سکون موت کے مترادف ہے۔ صرف وہی قومیں زندہ و پائندہ رہتی ہیں جو خودی کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے عمل سے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ذات میں کئی قابلیتیں اور صلاحیتیں ناپختہ اور خام حالت میں موجود ہیں اور انسان ان سے ناواقف ہے۔ قدرت کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان قابلیتوں کو پالے، کیونکہ انسان کی انفرادی صلاحیتیں ہی اسے دیگر انسانوں سے ممتاز اور یکتا بناتی ہیں۔ حضرت اقبال نے جوانوں کو جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں جوانوں کے اندر جو ہے وہ ایسی جذبات، ایسی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیا کی امامت، دنیا کی لیڈرشپ اور دنیا کی قیادت کر سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ دنیا کی رہنمائی کے لیے کن خصائص، کن خصوصیات کی آپ کو ضرورت ہے، وہ جوانوں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ان خصوصیات کو، اور یہ جو بنیادی اصول ہیں، جب تک آپ اپنی شخصیت میں ان خصوصیات کو پیدا نہیں کریں گے تو آپ دنیا کی رہنمائی کے اہل، دنیا کی قیادت کے اہل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اور مجھے تو ہمیشہ جاوید کے نام جو ان کا پیغام ہے، جاوید ان کے صاحبزادے جن کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط لندن میں
वसूल करते हुए के बाद ये नज़्म लिखी थी। 5 अशार की ये नज़्म है, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमारे सब जवानों के लिए, हम सब के लिए है कि दायरे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फरंग के एहसां, सफाल हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फैम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल हमेशा जवान को मुखातिब करते हुए जो है उसे अपने माजी का हवाला देते हैं कि वो क्या तुम्हारी माजी कितना रोशन था, ज़रा उसको देखो और उसको देखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में आप सोचो। आप कहते हैं कि कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। इस वक्त पाक बैरिया और पाक रेंजर्स के दस्ते ने अपनी पोजीशन से मूवमेंट स्टार्ट की है। पाक बैरिया के जवान मज़ार इकबाल के चारों तरफ अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं, जबकि पाक रेंजर्स का दस्ता वापस हो चुका है। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने शायरी में कदीम बिद्दतों का खात्मा किया, शायरी को गिने चुने मज़ामीन की तंग फज़ा से निकाल कर खुले जहानों से मुतारिफ करवाया और इन जहानों के इजहार के लिए नई शेरी लुगत मुतारिफ करवाई। कदीम अलामतों को नए मज़ामीन और पस मंज़र में इस्तेमाल किया, काफ़ियों के नए सिलसिले और लफ्ज़ों के नए इस्तेमाल के ज़रिए जदीद और नादिर मज़ामीन के इब्लाग व इजहार को मुमकिन बनाया। उर्दू अदब को लाजवाल नज़्में अता की और वो नज़्में हमारी शायरी का एक ऐसा असासा है जिन पर यकीनन उर्दू ज़ुबान को फ़ख्र है। अपनी स्क्रीन पर जो आप मनाज़र देख रहे हैं, पाक बहरिया के जवानों में फूलों की चादर उठाए हुए हज़रत इकबाल की आखिरी आरामगाह की तरफ मुँह कर रहे हैं। और आज के मेहमान ख़ुसूसी कोमोडोर साजिद हुसैन, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से हज़रत इकबाल को खराज अकीदत पेश करने के लिए फूलों की चादर चढ़ाएंगे। ये खूबसूरत धुन जो इस वक्त आप सुन रहे हैं हज़रत इकबाल की खूबसूरत शायरी पर मुश्तमिल है। खुदी का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने बताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़यां ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त कोमोडोर साजिद हुसैन मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं, जिसके बाद फातिहा खानी होगी और तकरीब अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह इस कलाम पाक का सवाब हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रूह अक़दस को फरमा। अल्लाह इसका सवाब हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाए मुक़द्दसा को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब हज़रात सहाबाए कराम, हज़रात अहले बैत अतहार रज़वानुल्लाह अजमईन की रूहों को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब ताबईन, तबा ताबईन, औलिया अल्लाह की रूहों को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। अल्लाह इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ताला
की रूह को पहुँचा। ऐ अल्लाह इसका सवाब शायर मशरक हकीमुल उम्मत हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह पुरफतूर को पहुँचा। ऐ अल्लाह आज यौम इकबाल पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी इज़्ज़त बड़े एहतराम से मनाया जा रहा है। अल्लाह तो इसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अफ़कार से रोशनी हासिल करने और उसके मुताबिक मुल्क व कौम व मिल्लत को चलाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना दे। ए अल्लाह इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हर अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। या अल्लाह इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को दहशत गर्दी से महफूज फरमा। ए अल्लाह इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अमन अता फरमा। ए रब्बे करीम पाकिस्तान के लिए जो हमारी अफवाज हमारी रियासत हमारी हुकूमत अमन इस्तेहकाम के हवाले से जो काम कर रही है अल्लाह उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमा। और जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के शुहदा हैं ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़रत और उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ को हर घर की आवाज़ बना दे। उम्मत में वहदत अता फरमा। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ए रब्बे करीम जो इसराइल वहाँ पर इस वक्त जुल्म कर रहा है या अल्लाह उस जुल्म से इस फ़लस्तीन के मुसलमानों को नजात अता फरमा और उम्मत में वहदत अता फरमा और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। और आज की हज़रत अल्लामा इकबाल के इस यौम को या अल्लाह जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर अल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन मेहमान ख़ुसूसी की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाने का अमल मुकम्मल हुआ जिसके बाद फातिहा ख़वानी की गई और अब मेहमान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासरात कलम करेंगे। ये तकरीब अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने आज पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते को मज़ार इकबाल पर गार्ड की जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। आज की इस तकरीब के मेहमान खास पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडोर साजिद हुसैन थे, जबकि पाक बहरिया के गार्ड ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हम ये खूबसूरत से बिगल की आवाज़ सुन रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मेहमान खास तशरीफ लाएंगे और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे। हज़रत इकबाल की सारी शायरी ही खूबसूरत है, लेकिन शिकवा और जवाब शिकवा क्या बात है। इसी में से एक बंद है कि हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, तरबियत आम तो है जौहर काबिल ही नहीं, और जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। इस वक्त मेहमान ख़ास तशरीफ़ लाए हैं और मेहमान ख़ुसूसी जो है वो अपने तासुरात कलमबंद करेंगे मेहमानों की किताब में। अल्लामा इकबाल की जो शायरी है उसके अंदर मोहब्बत, इश्क और इश्क रसूल का भी एक बड़ा जज्बा मौजज़न है। आपके फ़ारसी के अशार बहुत ही जो है वो मानी खेज़ हैं, जिनके अंदर मफ़हूम के समंदर मौजज़न हैं। आप कहते हैं कि तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ मैशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तू नबीनी हसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। क्या बात है सर। और शिकवा का एक बंद है, उनकी नज़्म जो है, बनी अग़यार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक खाली दुनिया,
हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। नाज़रीन इकराम, तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है और मुफक्किर मिल्लत, हकीम उल उम्मत, दानाए राज हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल पूरी दुनिया का बिलअमूम और मुस्लिम उम्मा का बिलखुसूस मुश्तरका असासा हैं। उनकी शख्सियत, हयात और बिलखुसूस उनकी शायरी में मौजूद पैगाम को हमें उनकी अज़मत के शयान शान ही मनाना चाहिए। और इसी सिलसिले की कड़ी आज की ये तकरीब, जिसमें हम हज़रत इकबाल की अज़मत और एक अलहदा वतन के उनके नज़रिए को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़ा और इखलास नीयत ही का समरा है कि हर आने वाला दिन पैगाम इकबाल की मानवियत में इजाफा कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ गोशों से लोग इकबाल को खराज तहसीन पेश करने उनके मज़ार पर हाजिर होते हैं, जो इकबाल के इस दावा का बैन सबूत है। ज़ियारत गए अहले अज़्म हिम्मत है लहब मेरी, कि खाक राह को मैंने बताया राज अलबंदी। इस वक्त मेहमान खास अपने तासुरात जो है वो मेहमानों की किताब में कलम बंद कर रहे हैं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी। आज की इस तकरीब में पाक बहरिया के टाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए हैं, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार पर अपने फराइज से सुबुकदोश होकर रुखसत हो गया। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन ने गार्ड में शामिल YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।